Welcome friends. Today in this lecture, that is the lecture number 1, lecture number 1, this is the first video of our new series, that is the analog electronic circuit series. This is a subject which is important for your GATE and other government examination, and also important for your semester examination and various competitive examinations. So, this is the analog electronic circuit. We will mainly focus according to electrical and electronics engineering basis. Okay. So, this is the analog electronic circuit and this is the lecture number 1. In this lecture, we will mainly focus on introduction part, means introduction to analog circuits, means what we are going to discuss in this series, that is the analog electronic series. Okay. So, why analog electronics? What is the importance of this analog electronics? Analog, what do you mean by analog? Analog means continuous. There is a two type of signal basically. Okay, analog signal and the discrete type signal. Discrete means if some circuit, some signal is discrete, that means there will be only means there will be a discontinuity in the amplitude and the time axis. Suppose if there is a this is your coordinate, then if the waveform is like this one, then this will be your analog signal या फिर continuous signal, because at each and every point of time the signal is defined. Okay. Now, for example, your discrete signal, we will take the example of the discrete signal. Okay. Suppose this is your signal. Okay. No, not like this one. Wait. Suppose this is your signal. Okay. So, here we can see that for this time period there is a signal of pulse, let it be 1, and for this time period there is a pulse. So, this will be a discrete, means there is a there is a no signal available for us for some time. So, this will be a form of a digital or discrete type signal. Okay. And this is your continuous time signal. So, analog means we mainly focus on continuous time signal, and electronics we already know. Electronics means electron level components we will discuss. Okay. At the level of the electronics, one electron size component we will discuss. And the circuit means the circuit which is formed by connecting some electronics component to process or to pass the analog signal or continuous signal. That will be your analog electronic circuit. So, basically in this subject we will discuss about the electronic components, what are the electronics components, devices, and what is the characteristics of that one, how that one operates, and what is the application of that one. Means by using that component or the electronic component or device, we will complete some type of circuits to perform certain functions. Okay. For example, rectifier which convert AC to DC. तो इस सीरीज में ये जो नया सब सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो सीरीज है या नया सब्जेक्ट जो है, इसमें बेसिकली हम लोग जो है क्या डिस्कस करेंगे, जो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक बीजेटी, डायोड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या है, कैसे काम करता है, नहीं करता है ना। और उसके बाद उसके हेल्प से वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे उसके हेल्प से उसका एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। मीन्स वो जो डिवाइसेस है उसको कैसे किस तरह से हम लोग को कनेक्ट करना चाहिए, सो दैट वी कैन
perform some operations on the signals. Okay. So that will be your part of analog electronic circuit. Okay. And this is also this subject is also important for the various examination. And one more important thing, that in higher study, in higher semester, there is a subject called power electronics. For that one, this subject, that is the analog electronic circuit, will act as a basic, act as a basics. Okay. So you must focus on this subject. Okay. Now let us start. Okay. Have you seen this type of circuit? this सर्किट, ये जो सर्किट है, ये बेसिकली आपको एक मोबाइल का जो एडेप्टर होता है, जो जिससे मोबाइल चार्ज होता है, वो जो एडेप्टर है जो कि कन्वर्ट करता है, जो हमारा सप्लाई AC से DC में जो कन्वर्ट करता है जो एडेप्टर, उसका ये एक सिंपल सा सर्किट है। जो मोबाइल का एडेप्टर हो या फिर लैपटॉप का जो एडेप्टर हो या फिर सोलर सेल का जो एडेप्टर है, वो सब में जो बेसिक जो एनालॉग सर्किट यूज होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये देखिए कैपेसिटर हो गया, फिल्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये सब डायोड है आपका, ये सब जो है, ये सब क्या है, डायोड, जिसको हम लोग रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, रजिस्टर है, फ्यूज रजिस्टर। ये क्या, कंट्रोल सर्किट। ये सब आप पढ़िएगा हायर लेक्चर्स में, मीन्स कमिंग लेक्चर्स में। ओके। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ेगा आपको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। ये सब बेसिक एक सिंपल सर्किट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। इस सर्किट का यूज करके हम एडेप्टर बना सकते हैं। ओके। सो एडेप्टर बनाना हुआ या फिर इन्वर्टर का, जो आपके घर में भी हो, इन्वर्टर के PC में भी आपको क्या है, आपको ये पावर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज होता है, जैसे मॉसफेट हो गया, BJT हो गया, ये सब का आप यूज करते हो। तो सो ये सब जो आप बहुत सारा देखे होंगे, सेंसर जो है, सेंसर सबको ऑपरेट करने के लिए भी हम लोग एनालॉग डिवाइसेस का यूज करते हैं, क्योंकि जो सेंसर से जो इनपुट मिलता है, जो सेंस करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, है ना, वो सब क्या होता है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक एनालॉग टाइप ऑफ सिग्नल, एनालॉग टाइप ऑफ सर्किट चाहिए, है ना। इसलिए एनालॉग सर्किट पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आजकल तो आप लोग देख ही सक रहे हैं कितना स्मार्ट हो गया है सब कुछ, है ना। तो हम लोग क्या है, बेसिकली आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। एक हो गया एनालॉग एंड एक हो गया डिजिटल। दो चीज़ कि एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है, और एनालॉग को यूज कहाँ करते हैं और डिजिटल का यूज कहाँ करते हैं। जैसे एनालॉग का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर कंटिन्यूस सिग्नल है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है, लगातार हो रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ स्पीच आए जा रहा है, ये सब हो गया एनालॉग सिग्नल, है ना। डिजिटल में क्या होगा, अगर मान लीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बोलते हैं सिंपली, या जैसे स्विच का मान लीजिए, स्विच क्या होगा, एक बार ऑन या ऑफ, एक बार ऑन होगा या फिर ऑफ। मीन्स ऑन होगा तो मान लीजिए उसको 1 मीन्स ऑन है, और यदि ऑफ है तो उसको मान लीजिए 0। तो ये एक तरह से डिजिटल हो गया। मीन्स हमेशा आपका सिग्नल अवेलेबल नहीं है, कहीं पर ऑन है कहीं पर ऑफ है। तो जब भी हम लोग को एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करना है, किसको, एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस, ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग को कौन सा सर्किट यूज करना पड़ेगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उसी टाइम में अगर डिजिटल सिग्नल है, उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग को डिजिटल सर्किट का यूज करना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, क्यों हम लोग को एनालॉग और डिजिटल का जो है ज़रूरत है। और आजकल इतना सारा एप्लीकेशन है ये सब का, है ना। चलिए देखते हैं पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता क्या है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेज द कंटिन्यूस सिग्नल टू रिप्रेजेंट इन द प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। सिंपल है, क्या कंटिन्यूस सिग्नल को यूज करता है ना। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल को यूज करता है। एग्जाम्पल यूज कहाँ होता है, किसको, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, रेडियो, ऑडियो इक्विपमेंट, कंट्रोल सिस्टम, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। एम्पलीफिकेशन में भी यूज करते हैं, है ना। लाउड स्पीकर हो गया, है ना, बहुत सारा है। नॉइज फिल्टरिंग में भी करते हैं, फिल्टर की तरह भी काम कर सकते हैं।
और प्रोसेस करने का। सिग्नल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया, सिग्नल पे प्रोसेस करना। प्रोसेसिंग मतलब जैसे हो गया एडिशन करना, सिग्नल को मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, कट करना, रिमूव करना, प्रोसेस हो गया उसको, है ना। कॉमन कंपोनेंट क्या क्या यूज होता है, जैसे पैसिव कंपोनेंट में हो गया रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और एक्टिव कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर हो गया, ओप-एम्प हो गया। एक्टिव का मतलब क्या हो गया, जिसको चलाने के लिए हमको उसके लिए कुछ सोर्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। और पैसिव क्या हो, जिसको चलाने के लिए हम लोग को सोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप खुद का खुद ही चलते रहता है ना। तो पैसिव कंपोनेंट हुआ और एक एक्टिव कंपोनेंट हो गया। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर को चलाने के लिए हम लोग को कुछ चाहिए क्या, नहीं, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे सर्किट में, है ना। और यदि सप्लाई देंगे तो सिंपली यहाँ से करंट फ्लो देगा। मेनली रजिस्टर चलाने के लिए हम लोग को कुछ भी इस तरह का यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर जैसे आपने कोई स्पीकर देखा होगा, है ना, कोई स्पीकर देखा होगा, सिंपली उसको मोबाइल से कनेक्ट करने से वो नहीं चलेगा, उसके लिए अलग से हम लोग उसको सोर्स सप्लाई करते हैं, है ना। तो वो हो गया आपको एक्टिव कंपोनेंट, क्योंकि अलग से उसको चलाने के लिए हम लोग को सोर्स देना पड़ता है। कोई स्पीकर होता है, सिंपली मोबाइल से कनेक्ट कर दिए, वो आपका चलना स्टार्ट हो जाता है ना, समझे। और कोई स्पीकर को एक्स्ट्रा पावर सप्लाई दिया जाता है ना। तो ये एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट है, ये बेसिक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे। डिफरेंस क्या है दोनों में, एनालॉग में कंटिन्यूअस हो गया, समझे। और डिजिटल में कहाँ यूज करते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल में यूज करते हैं, बाइनरी डाटा जो होगा वो डिस्क्रीट में आ जाएगा, है ना। और डिजिटल का सबसे खास बात क्या है कि आप उसको स्टोर कर सकते हैं इजीली, है ना। बहुत बड़ा डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर डाटा भी भेजना है तो आप डिजिटली इजी होता है भेजने के लिए कंपेयर टू एनालॉग, ठीक है। एनालॉग इज बेटर फॉर हाई एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग को एनालॉग प्रीफर करना है। और डिजिटल को प्रीफर कब करना है, डाटा स्टोरेज और मैनिपुलेशन के लिए, मीन्स उस पर प्रोसेस करने के लिए, है ना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एम्पलीफायर एप्लीकेशन देखिए, एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। एम्पलीफायर मीन्स उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाना, बूस्ट करना, है ना। इसमें एम्पलीफायर में भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गया, ओप-एम्प हो गया, पावर एम्पलीफायर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं, मीन्स फिल्टर मीन्स अगर किसी सिग्नल में नॉइज है तो नॉइज को हम लोग रिमूव करने का भी काम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, लो पास, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेटर की तरह भी यूज करता है। अगर किसी को कोई सिग्नल जनरेट करना है, पार्टिकुलर सिग्नल जैसे साइन वेव जनरेट करना है, तो हम लोग इसका हेल्प ले सकते हैं, मीन्स वेव फॉर्म जनरेशन में भी यूज कर सकते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करना है तो भी हम लोग इसको यूज करते हैं। एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो एनालॉग इनपुट होगा, एनालॉग आएगा एक सिस्टम में, उसके बाद बाहर जाएगा आपको डिजिटल, एनालॉग आएगा और जाएगा डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल इनपुट है, तो यहाँ पर क्या होना, एनालॉग सर्किट होना चाहिए। कंपेरेटर में दो सिग्नल को अगर कंपेयर करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज कर सकते हैं। रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है, जो वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बोला जा सकता है या फिर डिवाइस बोला जा सकता है जो मेंटेन करता है कांस्टेंट वोल्टेज को डिस्पाइट वेरिएशन इन इनपुट एंड द लोड वेरिएशन। समझ में आया। एप्लीकेशन कहाँ है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, रेडियो एंड ऑडियो इक्विपमेंट में, एम्पलीफायर, स्पीकर, रिसीवर, कंट्रोल सिस्टम में यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, लैब इक्विपमेंट में, प्रोसेस कंट्रोल में, ऑटोमेटिव सिस्टम, एरोस्पेस सिस्टम, ये सब में हम लोग इजीली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, है ना। आपने एसी में भी देखा होगा कंट्रोल सर्किट रहता है ना, वो कंट्रोल सर्किट जो होगा वो भी आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है। उसमें उसका जो सर्किट होता है, बोर्ड जो होता है ना। एडवांटेज क्या है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, हाई एक्यूरेसी फॉर, बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेसी रहता है, किसके लिए, कंटिन्यूस सिग्नल दे रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लेना। मान लीजिए कंटिन्यूस सिग्नल है, उसको डिजिटल सर्किट से पास करवाना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कीजिए तो लॉस हो जाएगा, है ना। हाई रिजोल्यूशन होता है ना। रोबूस्ट एंड रिलायबल होता है ना। लोअर पावर कंजम्पशन, इसमें पावर कंजम्पशन भी कम होता है, क्यों,
क्योंकि डिजिटल में बहुत सारा छोटा बहुत सारा इक्विपमेंट कनेक्ट करना पड़ता है ना, बहुत सारे डिवाइसेस। डिसएडवांटेज क्या है, ये सब्सिप्टेबल टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस। एनालॉग का यही है क्या, इसमें नॉइज और इंटरफेरेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन डिजिटल में बहुत कम, ज़्यादा नहीं होता है ना। अगर है भी तो उसको ईजिली हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका कैपेसिटी जो होता है, डाटा एनालॉग से हम लोग ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं, लेकिन डिजिटल में कोई वो नहीं है। डिजिटल में बहुत सारा हम लोग डाटा ईजिली भेज सकते हैं, है ना। पहले आपने टेलीफोन, पहले जो हम लोग ब्रॉडबैंड चलाते थे, क्या है, एक वायर रहता था, वायर आता था घर में, टेलीफोन, और उसके हेल्प से हम लोग नेट चलता था ना। लेकिन अभी क्या, अभी एक फाइबर आता है, फाइबर में जो है ना डिजिटली सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है ना। तो लेस फ्लेक्सिबल देन द डिजिटल सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। डिजिटल में कितना छोटा सा कंपोनेंट रहता है ना, बहुत सारा छोटा चिप देखिए ना आप, जैसे माइक्रो मदरबोर्ड देखिए, किसका, कंप्यूटर का, सब क्या है उसमें डिजिटल नहीं लगा रहता है, डिजिटल डिवाइसेस रहता है ना, बहुत सारा चिप होता है, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ये सब डिजिटल डिवाइसेस हो गया। और कॉम्प्लेक्स भी है और हार्डर टू डिजाइन है, क्योंकि एनालॉग है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा सामान रहता है इसमें, है ना, तो वो हार्डर भी होता है। ठीक है, ये सिंपल सा टेबल है, कंपैरिजन टेबल बिटवीन द एनालॉग एंड द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सिग्नल हो गया, एक्यूरेसी हो गया, डाटा कैपेसिटी, ट्रांसमिशन, नॉइज, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखिए ये कंप्यूटर, स्मार्टफोन, डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, किसको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये हो गया आपको बेसिक हो गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आप क्या समझते हो, सिंपल। ओके, नाउ जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है कौन सा मटेरियल से हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बना सकते हैं। तो वो जो मटेरियल जो यूज होता है उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल। कौन सा मटेरियल, सेमी कंडक्टर मटेरियल। आप लोगों को पता है मटेरियल को हम लोग ने 3 पार्ट में, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, क्या क्या, कंडक्टर जिसको मेटल भी बोलते हैं, सेमी कंडक्टर एंड देन इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स उससे जो है करंट आपका पास नहीं होता, इंसुलेटर जैसे लकड़ी हो गया, वुड हो गया, है ना। लेकिन कंडक्टर क्या है, जिससे करंट जो है इजीली पास होता है, जैसे मेटल हो गया, जैसे कॉपर हो गया, वायर। और सिलिकॉन क्या हो गया, जिसका कंडक्टिविटी जो है कंडक्टिविटी जो है लाई करता है किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। मीन्स फॉर सर्टेन कंडीशन हमारा सेमी कंडक्टर जो मटेरियल है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है ना। तो वो सेमी कंडक्टर आता है। सेमी कंडक्टर आज दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्ट करना, है ना, लाइज बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, अगर आपका टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो सेमी कंडक्टर जो वो कैसा बिहेव करेगा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मीन्स कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करेगा, है ना, थोड़ा बहुत लेकिन करेगा। ठीक है, द जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेमीकंडक्टर है जो मेनली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में, वो क्या क्या है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनिक हो गया। देखिए सिलिकॉन से बनता है और जर्मेनियम से, क्योंकि सिलिकॉन सिर्फ एक मटेरियल से बनता है ना, सिलिकॉन एक मटेरियल से भी बन सकता है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अगर उसमें 2 या 2 से अधिक है तो उसको बोलेंगे, जैसे गैलियम आर्सेनिक है, GaAs, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड या फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है सेमीकंडक्टर का, है ना, प्रॉपर्टी क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सिलिकॉन का 0.14 हुआ, जर्मेनियम गैलियम आर्सेनिक का हो गया। होल मोबिलिटी क्या हो गया, मोबिलिटी के बारे में सुना होगा आपने, मोबिलिटी मीन्स मोमेंट, कितना स्पीड से वो मूव करता है ना, 0.05 हो गया, है ना। आप यदि सिलिकॉन को टारगेट करें तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी देखिए ज़्यादा है 0.14, लेकिन होल का मोबिलिटी क्या है 0.05। इलेक्ट्रॉन क्या है, होल क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस, इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों को पता है लेकिन तब पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बैंड गैप क्या है, इंटेंसिक कैरियर क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर 3 टाइप का मटेरियल होता है बताए थे, है ना।
तो दो चीज़ होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड, और उस दोनों के बीच में कुछ गैपिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। तो इंसुलेटर में तो होता है, देख लीजिए इतना बड़ा क्या गैप है। जब भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो ही हमारा क्या होगा, वो कंडक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप है तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं के बराबर इसमें कंडक्शन बैंड में नहीं है। लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा ही है, अगर इसको अगर क्रॉस करके यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन तो कंडक्ट करना शुरू कर। और इसमें कंडक्टर में, इसमें देखिए यहाँ पर मर्ज मिला हुआ है, इसमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड में कोई गैपिंग नहीं है, तो इजीली ये कंडक्टेबल है। तो सो ये बेसिकली हो गया सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब जो बेसिक इम्पोर्टेंट सर्किट है ये सब एनालॉग सर्किट होते हैं, है ना। इन्वर्टर हो गया, है ना, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, है ना। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस, क्या क्या एक्चुअली हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसका पहले क्या है, पार्ट्स, कंपोनेंट्स या फिर डिवाइसेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डिवाइसेस है, जैसे हो गया नंबर 1 डायोड। क्या हो गया, डायोड एक डिवाइसेस है तो उसको हम लोग यूज करेंगे, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, डायोड के बारे में बहुत सारा टाइप का डायोड भी होता है, एलईडी हो गया, है ना। सोलर लाइट में, सोलर जो पैनल होता है उसमें भी डायोड का यूज होता है। अब कौन सा होता है ये आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। डायोड हो गया। उसके बाद क्या है, बीजेटी। बीजेटी मीन्स क्या हो गया, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, जेफेट। जेफेट मीन्स क्या हो गया, जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर, या फिर फेट भी बोलते हैं इसको, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या फिर मॉसफेट, MOSFET। देखिए जो फेट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें दो हो गया, एक हो गया जेफेट, एक हो गया मॉसफेट, अलग अलग टाइप का। और भी होता है एक CMOS, ये PMOS, NMOS, ये सब हम लोग को नहीं है, ये सब बेसिक में है, तो बेसिक हम लोग के लिए ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटीग्रेटेड थ्योरी होगा। इंटीग्रेटेड थ्योरी मतलब क्या हो गया, एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्पलीफायर के बारे में, क्या क्या एम्पलीफायर है, कौन कौन सा एम्पलीफायर है, कैसे यूज करना है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जिसको हम लोग ऑप एम्प भी बोलते हैं, ऑप एम्प हो गया, है ना। ऑप एम्प के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारा टाइप ऑफ एम्पलीफायर है, बहुत सारा एम्पलीफायर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको इंटीग्रेटेड थ्योरी में हम लोग काउंट करते हैं। ऑप एम्प हो गया, है ना। और क्या है, एम्पलीफायर में ऑप एम्प हो गया, ऑप एम्प का इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन में दो टाइप के होंगे, लीनियर टाइप और नॉन लीनियर एप्लीकेशन, है ना। ये सब बेसिक हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, है ना। और क्या क्या है, और भी बहुत कुछ है जो हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। ऑप एम्प के बारे में होगा मेनली हम लोग का, ये मेन टॉपिक रहता है, ठीक है। डिवाइसेस के बारे में मेनली जानना कि कैसे काम करता है, क्या होता है ना, सिंबल क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है। अब देखिए एप्लीकेशंस वाइज देख लेंगे, ठीक है। डायोड है तो डायोड का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एडेप्टर में जो बोल रहे थे, चार्जर एडेप्टर हो गया, है ना, जिसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं, रेक्टिफायर हो गया, है ना। पिक डिटेक्टर हो गया, वोल्टेज मल्टीप्लायर हो गया, मल्टीप्लायर मीन्स मल्टीप्लायर हो गया, वोल्टेज मल्टीप्लायर हो गया, क्लैम्पर हो गया, क्लिपर हो गया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसमें, डायोड के एप्लीकेशन से। जेनर डायोड भी इसी में आएगा, है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे डायोड्स में, है ना, ठीक है। रेक्टिफायर हो गया, फिल्टर हो गया, जेनर रेगुलेटर हो गया, है ना। डायोड के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस देखेंगे, कैसे हम लोग डायोड को एनालिसिस करेंगे, डायोड सर्किट को कैसे एनालिसिस करेंगे, है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या, नेक्स्ट टॉपिक बीजेटी। बीजेटी में हम लोग देखेंगे इसको कैसे बायस किया जाए,
बायस मीन्स क्या हो गया, अप्लाइंग और डीसी बैटरी और पावर सप्लाई। सिंपली बायसिंग मतलब क्या हो गया, बीजेटी बायसिंग मतलब क्या हो गया, सिंपली हम लोग जो बीजेटी है, क्योंकि वो एक्टिव डिवाइस है तो उसको सप्लाई देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना, तो वो बायसिंग हो जाता है। ठीक है। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कैसे करेंगे बीजेटी का, लार्ज सिग्नल एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा टाइप के बीजेटी है, कौन कौन से टाइप के डायोड है ना, तो ये सब इसमें काउंट हो जाएंगे। ठीक है। एम्पलीफायर कैसे हम लोग बनाएंगे बीजेटी के हेल्प से, है ना, एम्पलीफायर कौन कौन सा बना सकते हैं बीजेटी के हेल्प से। फीडबैक थ्योरी भी पढ़ेंगे इसमें, कौन कौन सा कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारा ये बीजेटी को, है ना। पावर एम्पलीफायर क्या होता है वो पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फेट देखेंगे। फेट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें से हम लोग दो टाइप का देखेंगे, जेफेट क्या होता है और मॉसफेट क्या होता है ना। इसका भी क्या देखेंगे, डिवाइस क्या है, बायसिंग कैसे करेंगे, एम्पलीफायर की तरह इसको कैसे यूज करेंगे, ये सब इसमें आ जाता है। मॉसफेट को भी सेम। ठीक है। तो मॉसफेट हो गया, फेट हो गया। मॉसफेट का आप देखिए ना, मॉसफेट इतना फास्ट स्विच की तरह काम करता है कि इसको हम लोग इन्वर्टर में मेनली यूज करते हैं। कहाँ, इन्वर्टर में। इन्वर्टर जो उसमें बहुत ज़्यादा ही देखते हैं, लाइट करता है तुरंत ऑन, लाइट आ जाता है तुरंत ऑफ हो जाता है ना। तो वो जो फास्ट स्विचिंग होता है पता ही भी नहीं चलता है हम लोग को, है ना, तो वो मॉसफेट के हेल्प से हम लोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग एम्पलीफायर में देखेंगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या मीन्स बहुत सारा एम्पलीफायर कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करना, कैस्केडिंग में कनेक्ट करना, ये सब आपका एम्पलीफायर में आ जाएगा। एम्पलीफायर में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, जिसको हम लोग ओपैम, जिसमें से एक है ओपैम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या, कैसे यूज करना है ना। तो ये सब हमारा मेन फोकस टॉपिक रहेगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, दिस विल बी आवर मेन एजेंडा ऑफ दिस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज। ओके, और ये आपको पता है ये इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना, स्पेशली द बेसिक्स इससे पूछा जाता है ना। अब देखिए बुक जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बुक आता है सेद्रा एंड स्मिथ का, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का है, बॉयलस्टेड का है, बॉयलस्टेड वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो बहुत सारा वेरियस मटेरियल्स है जो आप यूज कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गेट का बुक यूज कर सकते हैं, है ना, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। तो बहुत सारा है। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहा। तो हम लोग ने मेनली इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, कि हम लोग क्या क्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पढ़ते हैं, एनालॉग्स इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है ना, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है ना। तो ये सब और एप्लीकेशन कहाँ है वो देखे हैं, है ना। जैसे हम लोग ने एक डिस्कस किया था ये चार्जर वाला, मोबाइल चार्जर का जो एडेप्टर है, तो इसमें देख रहे हैं ये जो है ये क्या है आपका, बहुत सारा ये क्या है, डायोड है, 4 डायोड है यहाँ पर। 4 डायोड का यूज किया गया किस लिए, ब्रिज रेक्टिफायर की तरह यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका हो गया आपको एनालॉग सर्किट हो गया, है ना, समझ में आया। तो ये सब बेसिक है। यहाँ देखिए जेनर डायोड का यूज हुआ है ना, तो ये सब क्या है, एनालॉग डिवाइसेस ही है ना, एनालॉग सर्किट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। देखिए इन्वर्टर में भी यूज किया गया है ना, इन्वर्टर में देखिए यहाँ भी है ना। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिए मॉसफेट हो गया है ना, तो बहुत सारी ये ट्रांसफार्मर सब है ना। तो बहुत सारा चीज़ है जो आपको गेन करना है और धीरे धीरे गेन करना है, क्योंकि ये आपका बेसिक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बेसिक पार्ट यही होगा। तो मेनली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, तो उसका बेसिक जो है सेमीकंडक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है ना, कौन कौन सा मटेरियल है ना, एटम्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल कैसे क्रिएट होता है, और स्लोली हम लोग शिफ्ट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड पे, तब फिर उसका एप्लीकेशंस पे, तब फिर बीजेटी उसका एप्लीकेशंस पे, है ना, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एट्सेट्रा, है ना। तो आपको अच्छे से थोड़ा सा कंसिस्टेंटली जो है आपको फॉलो करना होगा लेक्चर्स, है ना।
और इस चैनल को दैट इज़ वन स्टॉप फॉर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हाँ, और एक बात, अगर आपको नोट्स चाहिए इसका जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो आप टेलीग्राम चैनल है वन स्टॉप फॉर ऑल, उस चैनल पे जाके आप नोट्स वहाँ से आपको कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है आपको ईमेल जो है, आपको अगर कुछ डाउट है तो पर्सनली आप मेल कर सकते हैं इस पर onestopforever@gmail.com पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।